Okay, good morning, everyone. Okay, so today we will discuss the regenerative cycle. Okay, so first let us understand what is the basic concept behind this regenerative cycle. Okay, so this is the TS plot 1, 2, 3, 4, 5. So what is our heat addition process? So heat addition process is up to 4 to 1. Okay, so in 4 to 5, between 4 to 5, we add the heat at the varying temperature. Okay, this 4 to 5, and in 5 to 1, we add the heat at this constant temperature. Okay, so if we make some arrangement, okay, if we make some arrangement to heat this up to 4 to 5 by some arrangement internally, and this heat is utilized, then we have to heat is 5 to 1. ओके, कहने का मतलब है अगर इस 4 to 5 को, ठीक है, अगर हम लोग इंटरनली मैं समहाउ इंटरनली हीट सप्लाई करके इसको हीट कर सके, then only we have to supply the heat externally from 5 to 1, and this 5 to 1 is the constant temperature, and this temperature is the maximum temperature of the cycle. So in that case it becomes a Carnot cycle because heat is added as maximum temperature of the cycle. So the average mean temperature of heat addition T1 and T can be increased. ठीक है, behind कहने का क्या मतलब है? What is the concept behind this regenerative cycle? कि अगर इस 4 to 5 that means varying temperature को अगर हम लोग some internally, that means make some arrangement to extract heat from the turbine internally, and this heat is utilized liquid from this 4 to 5, then only we have to supply the heat from 5 to 1, that is at constant maximum temperature of the cycle. So in that case it becomes a Carnot cycle. So for example, this is the boiler.
This is the condenser, and this is feed pump. This is 1, this is 2, this is 3, and this is 4, and this is 5. Okay, so 4 to 5. What is this? 4 to 5. यहाँ पे हम लोग 4 to 5 में हीट क्या कर रहे हैं? हीट, ठीक है, 4 to 5 extract heat from internally and the heat is extracted from these turbines. Okay, और इस यूट को हम लोग यहाँ पे हीट कर रहे हैं and then we supply only heat up to 5 to 1 में. ओके, कहने का मतलब है 4 to 5 अगर हम कुछ ऐसा अरेंजमेंट कर सके कि यहाँ पे कुछ इंटरनली हीट को हम यहाँ पे यूटिलाइज करते हैं हीट करने में अप टू 4 to 5. इंटरनल हीट कहने का मतलब है some extract heat from the turbine and this heat is utilized to heat this 4 to 5 and next 5 to 1 is the externally heat supply. This 5 to 1 is the externally heat supply. So this is called regenerative cycle. इससे क्या होगा कि मीन टेम्परेचर ऑफ हीट एडिशन इंक्रीज होगा. ओके, दिस 4 to 5 दैट मींस 4 to 5 हम लोग क्या कर रहे हैं? इंटरनली हीट कर रहे हैं एंड 5 to 1 इज द ओनली एक्सटर्नल हीट कर रहे हैं. सो समझ में आ रहा है ये रीजनरेटिव साइकिल का पर्पस क्या है? अब देखो रीजनरेटिव साइकिल ओके, सो सबसे पहले मैं डायग्राम ड्रॉ करता हूँ रीजनरेटिव साइकिल का. ओके, सो डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली आपको शेयर करता हूँ. और कुछ स्क्रीन में नजर आ रहा है? Yes, sir. म्यूट कराओ.
Okay, so this is the regenerative cycle. This is the boiler. ओके, सो अगर मैं डायग्राम कंप्लीट करता हूं तो काफी टाइम लगेगा, सो बेटर है मैं डायग्राम को ही शो करता हूं। ओके, सो दिस इज द रीजनरेटिव साइकिल। यहाँ पे देखो 10 to 1, 10 to 1 में क्या है, दिस इज द बॉयलर। ओके, 1 to 2, ठीक है, 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। दिस ऑल प्रोसेस क्या है, एडियाबेटिक एक्सपेंशन, रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन फ्रॉम 2। हम लोग यहाँ पे हीट एक्सचेंज कहाँ कहाँ पे कर रहे हैं, 2, 3। ओके, 2, 3 से हम लोग हीट एक्सचेंज कर रहे हैं। इसकी यूटिलाइज को कहाँ पे कर रहे हैं, to heat the heat from the these, so 4 to 5। okay, 4 to 5 यहाँ से क्या है, 4 to 5 में क्या है, कंडेंसर, एंड 5 to 6 में क्या है, फीड पंप अगेन, ठीक है, 6 and 3, ठीक है, 6 and 3 पे पहले डायग्राम को समझो, देन में हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। 6 to 3 क्या हो रहा है, यहाँ पे मिक्सर हो रहा है। ओके, यहाँ पे H2, दैट मीन्स ये क्या है, हीटर 2, एंड देन 7 to 8 में अगेन क्या है, फीड पंप, एंड अगेन 8 and 2 का क्या है, यहाँ पे मिक्सर हो रहा है, ये क्या है, H1, एंड अगेन 9 to 10 में क्या है, फीड पंप है। सो साइकिल कैसे कंप्लीट हो रहा है और कैसे ये साइक्लिक प्रोसेस रिपीट हो रहा है। सो सबसे पहले देखो 1 to 2 में सपोज कर रहा है कि 1 kg ऑफ स्टीम इस टरबाइन ब्लेड पे फॉल हो रहा है ना। अब यहाँ पे क्या करें, 1 माइनस, ठीक है, m1 kg ऑफ स्टीम को मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट कर लिया। ओके, देन ये आगे कितना फ्लो हुआ, 1 माइनस m1 ना। अगेन मैं क्या कर रहा हूँ, m2 kg ऑफ स्टीम यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो जाना, तो आगे कितना बना, 1 माइनस m1 माइनस m2। so this 1 minus m1 minus m2 kg of steam is passed through this condenser। so 1 minus m1 minus h2, अगेन ये कंडेंसर के बाद अगेन हम लोग फीड पंप से इसको क्या करेंगे, इस हीटर में पास करेंगे। ओके, सो 1 माइनस m1 माइनस m2, यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, 1 माइनस m1 माइनस m2, और यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, m2। सो आफ्टर मिक्सिंग क्वांटिटी कितना होगा, आफ्टर मिक्सिंग क्वांटिटी कितना होगा, आफ्टर मिक्सिंग कहने का मतलब है एट पॉइंट 7 पे,
सर आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। आवाज क्लियर नहीं आ रहा है? कट कट क्या रहा है सर? यस नेटवर्क प्रॉब्लम है। ओके, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ। दिस इज सिमेट्री डायग्राम ऑफ द रीजनरेटिव साइकिल। ओके, रीजनरेटिव साइकिल में क्या है, 10 to 1 में क्या है, बॉयलर है जहां पे हम लोग एक्सटर्नली हीट सप्लाई कर रहे हैं। ओके, इस 1 पे क्या है, 1 के एज्यूम कर रहे हैं कि यहाँ पे 1 kg ऑफ स्टीम फॉल्स हो रहा है इस टरबाइन ब्लेड पे एंड द प्रेशर इज P1। ओके, नाउ 1 माइनस 1 kg है, तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, एट सेक्शन 2 पे M1 kg ऑफ स्टीम को मैं एक्सटेट कर रहा हूँ। ओके, देन M1 kg ऑफ स्टीम कर रहा है, देन आगे कितना पास करेगा, 1 माइनस M1। ओके, एंड अगेन एट पॉइंट सेक्शन 3 पे M2 kg ऑफ स्टीम में एक्सटेट कर रहा हूँ थ्रू दिस टर्बाइन, तो कितना हुआ, आगे अब कितना बचा, 1 माइनस M1 माइनस M2 and this 1 minus M1 kg of steam pass through this condenser। ठीक है, सो आफ्टर पासिंग कंडेंसर अगेन इट फिट, हम लोग क्या करें, इसको फीड पंप के थ्रू दिस हीटर में भेज रहे हैं। दिस इज H2 मीन्स हीटर 2। सो यहाँ पे क्वांटिटी कितना है, 1 माइनस M1 माइनस M2, और यहाँ पे क्वांटिटी कितना 3 पे सक कर रहे हैं M2। सो फाइनली यहाँ पे हीटर 2 पे क्या होगा, दोनों का मिक्सिंग होगा एंड आफ्टर मिक्सिंग एट सेक्शन 7 पे कितना क्वांटिटी बचेगा, 1 माइनस M1। समझ में आ रहा है ये? सो ये डायग्राम समझ में आ रहा है सभी को? किन्हीं तरफ से आंसर नहीं मिल रहा है? हेलो यस सर। सर। हाँ बोलो। सर बोल रहे जो है Q2 है ना सर, वहाँ पे हम समझ में नहीं आया थोड़ा सा। Q2 कहाँ पे, Q2 यस सर। दिस 4 to 5। यस सर, यस सर। तो देखो यहाँ पे फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ध्यान से देखोगे। सो 10 to 1 में क्या है, बॉयलर है। ओके, सो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग हीट सप्लाई कर रहे हैं एक्सटर्नली टू दिस बॉयलर। ठीक है, आफ्टर स्टीम जनरेशन, ये स्टीम एज्यूम कर रहे हैं हम लोग कि 1 kg ऑफ स्टीम एट प्रेशर P1 फॉल्स हो रहा है इस टरबाइन्स पे। ओके, यहाँ एट सेक्शन 2 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, M1 kg ऑफ स्टीम को एक्सटेट कर ले रहे हैं इंटरनली। ओके, तो M1 kg ऑफ स्टीम को एक्सटेट कर लिया, देन आगे कितना स्टीम मूव करेगा, 1 माइनस M1। सो 1 माइनस M1 आगे आया। ओके, देन अगेन एट सेक्शन 3 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, M2 kg ऑफ स्टीम को एक्सटेट कर रहे हैं। देन फाइनली मेरा टोटल सेक्शन 4 पे कितना स्टीम आएगा, 1 माइनस M1 माइनस M2, और यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं दिस प्रेशर इज P4। सो ये स्टीम का क्वांटिटी फाइनली इज पास थ्रू द कंडेंसर। सो ये Q2 हीट रिलीज, सो कंडेंसर से पास करेगा तो ऑब्वियसली क्या है, हीट रिलीज करेगा। ठीक है, लेटेंट हीट क्या करेगा, चेंजेस यहाँ पे स्टीम है, देन आफ्टर पासिंग थ्रू इट कन्वर्ट्स इनटू लिक्विड्स, सो ऑब्वियसली इट रिलीज द हीट। सो हीट रिलीज हो रहा है क्या, Q2। एंड अगेन यहाँ पे क्वांटिटी 5 पे कितना है, 1 माइनस M1 माइनस M2 एंड दिस क्वांटिटी इज फीड थ्रू दिस पंप टू द हीटर। सो यहाँ पे क्योंकि 1 माइनस M1 माइनस M2 क्वांटिटी आया इधर से, और यहाँ पे कितना है M2। सो फाइनली यहाँ पे क्या, H2 पे क्या होगा, मिक्सिंग होगा। सो 1 माइनस M1 माइनस M2 प्लस M2, सो M2 M2 कैंसिल, सो फाइनली एट सेक्शन 7 पे कितना बचेगा, 1 माइनस M1। अगेन इस फीड पंप के थ्रू हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, दिस हीटर H1 में। सो 1 माइनस M1 यहाँ पे क्वांटिटी है एंड सेक्शन 2 पे M1। सो फाइनली यहाँ पे दोनों पे क्या होगा, मिक्सिंग होगा एंड फाइनली इट पास थ्रू द सेक्शन 9, वहां पे क्वांटिटी कितना रहेगा, 1 एंड दिस के अगेन इस लिक्विड को हम लोग फीड पंप के थ्रू दिस बॉयलर में सर्कुलेट कर देंगे। सो ये डायग्राम समझ में आ रहा है?
डायग्राम क्लियर है? यस सर। यस सर। ओके, सो यहाँ पे जो दो हीटर देख रहे हैं, ठीक है, H1 एंड H2, ठीक है। जनरली ये दो टाइप्स ऑफ हीटर होता है। एक फर्स्ट वन को बोलते हैं ओपन हीटर, ठीक है। ओपन हीटर का क्लासिफाई है, सो वाटर एंड वेपर आर मिक्स ईच अदर सो दैट देयर इज सेम इक्वल प्रेशर। कहने का मतलब है इन केस ऑफ ओपन हीटर जो भी यहाँ पे वेपर है, या दैट मीन्स दिस M2 एंड यहाँ पे जो वाटर है 1 - M, दे मिक्स एट द सेम प्रेशर, अदरवाइज मिक्सिंग इज नॉट पॉसिबल। एक दूसरे को बोलते हैं क्लोज्ड हीटर, ठीक है। स्टीम एंड वाटर दे नॉट मिक्स ईच अदर, ठीक है। वहां पे क्या रहता है, जस्ट स्टीम एट सम प्रेशर एंड वाटर एट सम प्रेशर एंड देयर इज ए सेपरेटिंग वाल्व्स इन केस ऑफ क्लोज्ड हीटर। सो यहाँ पे जो क्या किया गया, एक्सप्लेन किया गया, वो क्या है, ओपन हीटर है। अब ये देखो, इसको टीएस प्लॉट में कैसे करें। नाउ टीएस प्लॉट में कैसे प्लॉट करेंगे रीजनरेटिव साइकिल को। तो सबसे पहले हम लोग देखो यहाँ पे ड्रॉ कर दिए, कितना है 1 to 4 टोटल। वो यहाँ पे रिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कहाँ से कहाँ तक है, 1 to 2, 1 to 3, 1 to 4, ओके, 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4, ठीक है। यहाँ पे टोटल क्या है, आउटलेट, ठीक है, 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4, टोटल क्या है मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन। सो ये 1 to 4 टोटल मेरा रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन हो गया। नाउ 4 to 5, ये क्या है, 4 to 5 की थ्रू पास थ्रू दिस कंडेंसर, ओके। सो ये कंडेंसर प्रेशर P4 है, ये 4 to 5। नाउ 5 to 6 क्या है, अगेन फीड पंप, ओके। सो दिस इज 5 to 6, ये आपका रिवर्सिबल एडियाबेटिक कंप्रेशन हो गया 5 to 6। नाउ अब मिक्सिंग हो रहा है, मिक्सिंग कितना कितना पे कहाँ पे हो रहा है, देखो 6, ठीक है, 5 to 6 6 एंड 3 का दोनों का मिक्सिंग हो रहा है, ओके। कहाँ पे, एट 7 पे। तो 6 and 3, ओके। यहाँ पे हम लोग हीट एक्सचेंज करें, 3 से हीट एक्सचेंज किए कितना M2, ओके। और इधर से गया कितना 1 - M2 सॉरी 1 - M1 - M2। सो फाइनली 7 पे जाके कितना बचा, 1 - M1। तो क्लियर है ये। समझ में आ रहा है ये। एंड अगेन दिस यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 2 पे M1 kgO पे एक्सटेंड कर रहे हैं। सो इधर से M1 एंड यहाँ पे कितना हो गया 1 - M1। सो फाइनली पास थ्रू द 10 पे कितना होगा 1 kgO। सो टीएस डायग्राम समझ में आ रहा है या नहीं। टीएस प्लॉट समझ में आ रहा है या नहीं। यस सर। नहीं सर। समझ में आ रहा है। नो सर, नहीं समझ में आया सर, बढ़िया सर। नहीं समझ में आया, देखो और एक बार रिपीट। हाँ, टीएस डायग्राम समझने के लिए आपको इसका ब्लॉक डायग्राम समझना जरूरी है, ठीक है। अदरवाइज टीएस प्लॉट नहीं समझ में आएगा। और प्लस हम लोग को प्रोसेस, जो पहला प्रोसेस कौन सा रिवर्सिबल एडियाबेटिक है, कौन सा कंप्रेशन है, कौन सा एक्सपेंशन है, वो तो ध्यान में रखना ही है। सो यहाँ पे देखो टोटल 1 to 2, 1 to 3 एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द टरबाइन, वो क्या होता है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ठीक है। सो 1 to 4 टोटल मेरा क्या है, यहाँ पे देखो 1 to 4 क्या है रिवर्सिबल एडियाबेटिक एक्सपेंशन, ओके। नाउ अब 4 to 5 डायग्राम में देखो 4 to 5 क्या है, 4 to 5 इज पास थ्रू द कंडेंसर, ओके। सो हम लोग प्रीवियस में 4 to 5 जैसे ये क्या है 4 to 5 कंडेंसर प्रेशर क्या है P4, कितना क्वांटिटी ऑफ लिक्विड फ्लो हो रहा है 1 - M1 - M2,
1 माइनस M1 माइनस M2। ठीक है, अब देखो 3 पॉइंट पे, ये पॉइंट 3 है, डायग्राम ब्लॉक डायग्राम से मैच करो। 3 पॉइंट पे हम लोग कितना स्टीम सेक कर रहे थे, M2। ठीक है, और यहाँ पे 5 to 6 से होके कितना स्टीम जा रहा है, 1 माइनस M1 माइनस M2। दोनों कहाँ पे मिक्स कर रहा है, एट पॉइंट 7 पे। तो 7 पॉइंट पे क्वांटिटी कितना होगा, 1 माइनस M1। नाउ दिस 1 माइनस M1 अगेन जाएगा 7 to 8, अगेन 7 to 8 क्या है, रिवर्सिबल एडियाबैटिक कंप्रेशन। दैट मींस यहाँ पे क्या हो रहा है, फीड पंप का यूज हो रहा है। और एट 2 पे हम लोग क्या कर रहे हैं, M1 kg ऑफ स्टीम को ब्लीडिंग कर रहे हैं। सो दिस 8 to 9 फाइनली यहाँ पे मिक्सअप हुआ 9 पे, और फाइनली कितना हुआ यहाँ पे 1 kg, एंड दिस 1 kg ऑफ स्टीम फ्लो फ्रॉम 10 to 1। सो क्लियर है ये? Yes. यस सर। ठीक है, एक क्लास हम लोग और इसका यूज करेंगे रीहीट साइकिल का, नेक्स्ट क्लास, लेकिन अभी भी क्लास खत्म नहीं हुआ है। ओके, सो एफिशिएंसी वर्क डन टरबाइन माइनस वर्क डन बाय पंप डिवाइडेड बाय Q1। नाउ अगेन वर्क डन बाय टरबाइन कैसे लिखेंगे, अब यहाँ पे समझने वाला बात है। ठीक है, तो कैसे लिखेंगे, तो दोनों में डायग्राम को पहले देखो, इसको भी और टीएस को भी। तो सबसे पहले ब्लॉक डायग्राम देखते हैं हम लोग। सो ब्लॉक डायग्राम क्या है, वर्क डन बाय टरबाइन कौन कौन सा होगा, 1 to 2, 1 to 3 एंड 1 to 4। ओके, सो सबसे पहला देखो 1 to 2, यहाँ पे क्या है 1 kg ऑफ स्टीम फ्लो हो रहा है। ये देखो 1 to 4 टोटल मेरा ये वर्क डन बाय टरबाइन है। सो कैसे लिखेंगे इसको, 1 to 2, 1 to 2 में कितना kg ऑफ स्टीम फ्लो हो रहा था, 1 kg। सो दिस इज 1 एंड H1 माइनस H2। नाउ 2 to 3 में कितना kg ऑफ स्टीम, M1 यहाँ पे हम लोग एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट 2 पे। दैट मींस 2 to between 2 and 3, 1 minus M1, so 1 minus M1 into H2 minus H3। नाउ 3 पॉइंट पे हम लोग क्या कर रहे हैं, M2 kg ऑफ स्टीम को एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं। देन फाइनली 3 to 4 में कितना आ रहा है, 1 minus M1 minus M2 of H3 minus H4। तो क्लियर है वर्क डन बाय टरबाइन? Yes, sir. वर्क डन बाय टरबाइन, हाँ बोलो, वर्क डन बाय टरबाइन समझ में आया सभी को? वर्क डन बाय टरबाइन, किसी को कोई प्रॉब्लम है? No, sir. किसी को कोई डाउट नहीं है? ओके, देन Q1 कौन सा है, हीट सप्लाई कौन सा प्रोसेस में हम लोग कर रहे हैं यहाँ पे, H1 minus H10. 10 to 1 में। ओके, ब्लॉक डायग्राम ये, इसमें देखो हीट सप्लाई एक्सटर्नली हम लोग कर रहे हैं ओनली 10 to 1 में, और 10 to 1 में क्वांटिटी कितना फ्लो हो रहा है, 1 kg। सो 1 of H1 minus H10। नाउ वर्क डन बाय पंप कौन कौन सा प्रोसेस है, कहाँ पे हम लोग पंप वर्क कर रहे हैं, कौन कौन से प्रोसेस में, 6, 5. 6, 5, only 6, 5। 6, 5, 8, 7. 6, 5, 10, 7, 8 or 9, 10. 9, 10, वेरी गुड। 5 to 6, 7 to 8, 9 to 10, ये तीनों मेरा पंप वर्क है। सो लिखेंगे कैसे, वर्क डन बाय पंप। ओके, कितना ये क्वांटिटी है कि कितना kg ऑफ मास ऑफ स्टीम और लिक्विड फ्लो हो रहा है, यानी इतना kg ऑफ हम लोग पंप कर रहे हैं थ्रू दिस फीड पंप। सो 5 to 6 में क्वांटिटी कितना है, 1 minus M1 minus M2 of H6 minus H5 प्लस, अब 7 पे जाते हैं, यहाँ पे कितना हो गया, 7 to 8 में कितना हो गया, ओनली 1 minus M1। ठीक है, क्यों, यहाँ पे 1 minus M1 minus M2 इधर से है, और फाइनली यहाँ पे क्या हुआ, M2 kg ऑफ स्टीम, फाइनली 7 पे मिक्सिंग हुआ, एंड आफ्टर मिक्सिंग कितना बचेगा, 1 minus M1। सो 1 minus M1 of H8 minus H7 प्लस यहाँ पे 1 kg ऑफ है। ठीक है, आफ्टर मिक्सिंग यहाँ पे कितना होगा, ओनली 1 kg। सो 1 of H10 minus H9। सो क्लियर है ये चीज?
किन्हीं को कोई डाउट है इसमें? नो सर। नो सर। ओके, देन Q2 कितना होगा देखो। Q2 कौन सा प्रोसेस है मेरा? 4 to 5। Q2 कौन सा प्रोसेस है? 4 to 5। ओके, 4 to 5। सो Q2 5 यानी हीट रिजेक्शन। सो क्वांटिटी वहां पे कितना फ्लो रहा है? 1 माइनस M1 माइनस M2 ऑफ H4 माइनस H5। सो इतना सारा आपको डायग्राम से देख के लिखना पड़ेगा। ओके, तब जाके आपको एफिशिएंसी फाइंड होगा। अदरवाइज आप सोचोगे कि फॉर्मूला रट लेंगे, सिंपल, ऐसा कोई बात नहीं है। आपको डायग्राम रीड करके फॉर्मूला आपको राइट करना पड़ेगा। ओके, नाउ अब यहाँ पे कभी कभी पे आएगा कि M1 और M2 को कैसे फाइंड करेंगे। तो M1 M2 को हम लोग फाइंड कर सकते हैं थ्रू द एनर्जी बैलेंस इन हीटर। ओके, फॉर H1 के लिए। ओके, फॉर H1 कहने का मतलब फॉर हीटर 1 के लिए एनर्जी बैलेंस कैसे करेंगे। सो फॉर H1 के लिए देखो, ये मेरा H1 हो गया, ठीक है। सो कहने का मतलब है टोटल एनर्जी इनलेट इक्वल टू टोटल एनर्जी आउटलेट। सो टोटल एनर्जी इनलेट यहाँ पे क्या हो रहा है? M1, और इंथैल्पी एज्यूम करते हैं एट सेक्शन 2 पे H2। सो M1 इंटू H2 यहाँ पे इनलेट हो रहा है, प्लस और कौन सा इनलेट हो रहा है? दिस सेक्शन 8। सो 1 माइनस M1 इंटू H8। फॉर सेक्शन 8 के लिए इंथैल्पी लेते हैं H8। सो इतना एनर्जी यहाँ पे इनलेट हो रहा है ना। आउटलेट कितना होगा? 1 इंटू H9। ओके, सो इस तरह से हम लोग एनर्जी बैलेंस कर सकते हैं। सो M1 इंटू H2 प्लस 1 माइनस M1 इंटू H8 इक्वल टू 1 इंटू H9। सो एनर्जी बैलेंस देखो हीटर में, एनर्जी बैलेंस हीटर 1 में किसी कोई प्रॉब्लम है तो पूछो। एनर्जी बैलेंस इसलिए हम लोग यहाँ कर रहे हैं कि M1 M2 क्वांटिटी को प्रॉब्लम में आपको फाइंड करना रहेगा। सो एनर्जी बैलेंस 1 सिमिलरली हम लोग हीटर 2 के लिए भी कर सकते हैं। हीटर 2 के लिए इनलेट कौन सा है? एट सेक्शन 3 पे है। सो M2 वहां पे क्वांटिटी कितना है? M2 इंटू H3। हाँ, कैसे है सर? ठीक है। अच्छा, एक मिनट। ओके, ठीक है, नेक्स्ट क्लास हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। अभी कुछ काम याद आ गया, ठीक है। नेक्स्ट क्लास हम लोग रीजनरेटिव साइकिल को कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सर। एक मिनट जस्ट। नेक्स्ट क्लास हम लोग इसको कंटिन्यू करेंगे।